Welcome to the video tutorial of Clotixa Critical Care LBL. फ्रेंड्स, इस LBL में हमने क्रिटिकल इल पेशेंट्स में वीटी के रिस्क को हाईलाइट करते हुए इनॉक्सापेरिन के रोल को हाईलाइट करते हुए डिजाइन किया है। एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट क्रिटिकल इल पेशेंट्स में वीटी की रिस्क काफी हाई होती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। एंड रिसेंटली पब्लिश ISCCM 2022 गाइडेंस भी सजेस्ट करती है that all critical ill patients in the ICU should be considered at be a moderate to high risk for DVT. एंड फ्रेंड्स, इसी गाइडेंस में ICU एक्वायर्ड DVT से रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया गया है, जैसे कि वेसोप्रेशर यूज, एंड स्टेज रीनल फेलियर, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ VT. वी ऑल आर अवेयर अबाउट दीज रिस्क फैक्टर्स। पिछले LBL में भी हम इन रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करते रहे हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली फ्रंटियर 2025 में पब्लिश एविडेंस सजेस्ट करता है दैट अर्ली इनिशिएशन ऑफ प्रोफाइलैक्टिक इनॉक्सापेरिन थेरेपी was significantly associated with the 48% low ICU mortality in critical ill patients, which means इनॉक्सापेरिन की प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी को अर्ली इनिशिएट करने पर 48% तक ICU रिलेटेड मॉर्टलिटीज में रिडक्शंस पाया गया। So friends, multiple guidelines such as ISCCM 2022, American Society of Hematology 2018 and European Society of Anesthesiology 2018 recommend करती हैं that pharmacological prophylaxis with LMWH in critical ill patients for VT. And friends, we are already aware that enoxaparin एक biological product है and उसमें wider variations report किए गए हैं in the anticoagulant response in generic enoxaparin compared to the inhibitor brand in terms of tissue factor pathway inhibitor release and thrombin generation inhibition. Considering these variations, friends, we are already aware that US FDA and EMA has suggested their guidance to ensure the safety, purity, and potency of enoxaparin based on the following parameters: anti-factor 10 activity, anti-factor 2 activity, ratio of those anti-factor 10 and 2 activity, and tissue factor pathway inhibitor activity. Based on this guidance, friends, we are aware that Clotixa की ये additional pharmacodynamic study हुई है compare with the innovator brand and it has been clinically proven that Clotixa के अंदर enoxaparin bioequivalent है with the innovator brand. And during this study कोई भी severe adverse event भी report नहीं किया गया, which also highlight the safety profile of this Clotixa. Friends, when we talk about the critical ill patients, so ICU और critical ill patients के अंदर बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, चाहे वो ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी है या बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिसीज की वजह से होने वाली किडनी इंपेयरमेंट्स है, एंड एविडेंसेस आर हाईलाइटिंग दैट अप्रोक्सीमेटली 50% पेशेंट्स जो कि आईसीयू के अंदर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं AKI रिपोर्ट होता है। एंड इनॉक्सापेरिन की जो डोज है उसको भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बेस्ड ऑन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस. And the evidences are suggesting that if the patient's creatinine clearance is more than 30 ml per minute, then the enoxaparin dose should not be adjusted, but monitoring जरूरी है. If the creatinine clearance of the patient between the 15 to 30 ml each minute, then the dose of enoxaparin should not be exceed more than 20 mg per day. So friends, in general अगर हम बात करें मार्केट में फिक्स्ड डोज जो कि 40 और 60 mg के साथ अवेलेबल है, उसमें 20 mg की डोज को कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है. सो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द पेशेंट कंडीशन रिक्वायरमेंट, इन्हीं डिफरेंट डोजेस को फीजिबल करने के लिए क्लोटिक्सा की अनदर फॉर्मुलेशन जो कि मल्टीडोज कार्ट्रिजेस में अवेलेबल है, दिस क्लोटिक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस एंड पेन, जो कि 4 M32 गेज की BD कंपनी की नीडल के साथ आता है, जो कि मल्टीपल की बेनिफिट्स ऑफर करता है टू दी पेशेंट्स, जैसे कि up to 62% less thumb force required to dispense medications. We are already aware that 4 mm 32 गेज की नीडल जो कि BD कंपनी की है, उसकी जो इनर सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा है, उसकी इनर वॉल की जो थिकनेस है काफी कम है कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड नीडल, जिसकी वजह से अप टू 62% लेस थंब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू डिस्पेंस दी मेडिकेशंस. सिंस
क्लोटिक्सा में जो हमारी 4 mm 32 गेज की नीडल है वो अल्ट्रा फाइन है, 5 वेवल्स वाली नीडल है। इन जनरल नीडल्स में 3 वेवल्स होते हैं और इन वेवल्स का काम जो होता है वो बॉडी के अंदर इंसर्शंस में हेल्प करना होता है। सिंस क्लोटिक्सा की जो नीडल है वो 5 वेबल्स है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इसका इंसर्शन बहुत इजीली हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स फ्रेंड्स, पेशेंट को काफी ज्यादा कंफर्ट होता है एंड पेशेंट डोज को कंप्लीट भी करता है। एंड पुट टुगेदर फ्रेंड्स, पेशेंट को एक पेनलेस एक्सपीरियंस होता है थ्रू दिस क्लोटिक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस एंड पेन। Another challenges in the healthcare setup friends, जैसे कि evidences are suggesting and we are already aware that कि healthcare workers are at the increased risk of needlistic injuries। एंड इसकी जो इंडिया के अंदर प्रिविलेंस एंड फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया गया है वो है इन बिटवीन 61 to 79.5%, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर फ्रेंड्स कि ये जो निडलिस्टिक इंजरीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमटेंसेस में हो सकती हैं। To overcome these challenges or these incidences, we are having a NovaGuard SA Pro Needle Safety System जो कि क्लोटिक्सा प्रीफिल्ड सिरिंजेस के साथ आता है, जो कि एक्सीडेंटल नीडलिस्टिक इंजरीज को प्रिवेंट करता है। So friends, we are already aware about these all benefits of Clotixa PFS and multi-dose cartridges. So that's it in this video tutorial of Clotixa Critical Care LBL. I hope this tutorial will help you to understand the flow of this LBL in a better way. Thank you friends.